दोस्तों, हमारे देश के अंदर बहुत सारे किसान खेती करते हैं। हर किसान यह चाहता है कि उसकी खेती फ़ायदे वाली हो। तो आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो काफ़ी लंबे समय से हल्दी की खेती करते हैं। हल्दी की खेती करते हुए इन्हें काफ़ी समय हो चुका है और यह हल्दी का काफ़ी अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान से। अपना परिचय दीजिए और फसल जो आपने हल्दी की खेती लगाई है उसके बारे में बताइए। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਆਰਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਡੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। तो सर, आपको ये हल्दी की खेती करते हुए कितना टाइम हो गया? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਹਲਦੀ हैगी है। मतलब आपने ये 2 एकड़ से बढ़ा के 8 एकड़ कर दिया है। तो आपको इसमें फायदा अच्छा लगा? हाँ जी, दूजी फसलों नालों ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 2 रुपए ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। तो सर, आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि आप अपने खेत को किस प्रकार तैयार करते हैं? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਵਾਰ ਜੁਤਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। प्रति एकड़ के हिसाब से? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵਿਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ DAP ਪਾਓ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂੜੀ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब जो आपकी हल्दी है ये बिल्कुल जैविक है? हाँ जी, बिल्कुल जैविक है, दूसरा डंगा नहीं जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, तो इसके बीज के बारे में बात करें तो आप कौन सी बीज की बिजाई करते हैं? ਇਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਸੋਨੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੀ मतलब ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आपकी? बहुत टॉप ਦੀ क्वालिटी है जी। ठीक है, कोई भी बीज ले जा सकता है जी बीज। हाँ जी। तो जो इसके बारे में यह बताइए हमारे किसान भाइयों को जो हल्दी की खेती करना चाहते हैं कि आप इसकी बिजाई किस समय करते हैं? ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥੇ ਦੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ 15 ਤੱਕ ਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੀ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ 15 ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੱਟ ਕੇ। ਹਲਦੀ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ 15 तक हल्दी बिजाई कर देंगे। मिट्टी इसके लिए जी देखो, जैसे लाल मिट्टी होती है हमारी उपजाऊ मिट्टी, वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल रेतला बाण नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही जैसे रेत होता है भी उसमें बिजाई कर दें। उसमें क्या है जी, पौधा पीला होने लगेगा, पीला होने के बाद धीरे धीरे डेड हो जाएगा। इसके अंदर जो बीमारियाँ आती हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। बीमारी जी ऐसे है, इसमें एक फंगस रोग आता है। फंगस वही है, फंगस की पौधा आपको धीरे धीरे लाल पीला होने लग जाएगा। लाल पीला होने के बाद वो खुद डेड हो जाएगा और धीरे धीरे वो साथ वाले पौधे हैं जो उनको भी डेड करने लग जाएगा जी। ठीक है, तो उससे बचाव के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? उसके बचाव के लिए जी सबसे बेस्ट तो है जो हम रूड़ी की खाद देते हैं इसमें। ठीक है, वो सबसे बेस्ट है इसके। ठीक है, क्योंकि रूड़ी फंगस बहुत कम आने देती है जी, जो गोबर की खाद है अपनी। ठीक है, वो बहुत कम आने देती है, तो वो सबसे बेस्ट है। देखो अगर ज़्यादा आने लग गया तो केमिकल तो है ही थोड़े बहुत। वो केमिकल की आप फंगीसाइड की छिड़काव करते हैं, पानी के साथ भी दो, वो तो अलग चीज़ है जी। फिर यदि हमने मतलब हल्दी का ज़्यादा उत्पादन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। गोबर की खाद डालनी है 5 ट्राली ही 1 एकड़ के हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं डालनी। ज़्यादा भी क्या है जी, पौधे
जैसे कहते हैं हम इसमें ज़्यादा ईट होगी, मचने लग जाएंगे पौधे, मतलब खराब होने शुरू हो जाएंगे। 5 ट्राली से ज़्यादा भी नहीं देनी, और आप 4 या 3 ट्राली भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हल्दी के जो खेती का पूरा समय है वो कब से कब तक है, लगाने से लेके काटने तक? वो इसका सही समय जी, बुआई का तो बताया आपको, चौथे की 15 से 5वें की 15। ठीक है जी। और पटाई का समय अब जैसे अब पटने के लिए ये बिल्कुल तैयार है जी, मतलब अप्रैल से लेके मई से तो इसकी बिजाई शुरू हो जाएगी। हाँ जी, और जनवरी फरवरी में इसकी पटाई शुरू है। तो सर आप हमें यह भी बताएं कि जो ये हल्दी है इसके अंदर कोई कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करना हो? नहीं जी, इसमें कीटनाशक वगैरह का छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। मेरी सलाह तो यही है कि जैसे और फसलों में सुंडी आ जाती है, इसमें सुंडी आती है, जैसे पत्ता इसका इतना बड़ा पत्ता होता है, हाँ जी, तो पत्ते पे सुंडी आ गई, वो कितने को खाएगी? थोड़ा सा खाने के बाद भी अगर मान लो 5-10 दिन भी खाती रहेगी उसको, वो आधा पत्ता भी नहीं खा सकती। ठीक है। इतने में मौसम की तब्दीली हो जाएगी, बारिश होगी तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है। मतलब बारिश होने के कारण अब ज्यादा गर्मी पड़ गई एकदम से तो खत्म होगी। तो मतलब पेस्टिसाइड का इसके ऊपर उपयोग करने को कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो आप इसका जो बीज है, आप मतलब इसको उखाड़ने के बाद क्या क्या सेल करते हैं? इसको देखो जी, वो तो उस टाइम पे डिपेंड है, बंदा किस टाइम बीज लेने आता है। जैसे पता है क्या जी, जैसे आज हमने हल्दी पाड़ ली, आज जो जितना वजन 1 किलो में है, अगर बंदा वही बीज मान लो महीना ठहर के आया तो उस टाइम उसका जो वजन है वो कम हो जाता है जी। तो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि बंदा किस टाइम आता है जी, वो उस और कितना लेके जाता है। 1 किलो लेने आया, 10 क्विंटल लेने आया, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है जी। तो बलराज जी, यदि आपसे किसी ने बीज लेना हो जी, तो कब से कब संपर्क करे आपसे, यदि किसान भाई कोई आपसे बीज लेना चाहता है? देखो जी, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। और नंबर है जी मेरा 99 927 38 072। हाँ जी, 99 927 38 072। मतलब इस नंबर पे आपसे संपर्क कर सकते हैं? नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जी। ठीक है। तो बलराज जी, इसके बारे में और बताइए, बीज बिचने के अलावा इसका और भी कुछ बनाते हैं आप? हाँ जी, इसका पाउडर करके तैयार बेचते हैं। पाउडर हल्दी और मिर्च दोनों का हमारे पास तैयार मिलता है। हर टाइम किसी भी टाइम आप आकर ले जा सकते हो। अगर हमारे नज़दीक में एरिया पड़ता है तो हम वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। वो तो अगर ज़्यादा कॉस्टली में कहीं बंदे ने और मंगवाना भी है तो मान लो ज़्यादा उस एवरेज में उसमें मंगाना क्वांटिटी में हम वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। अच्छा। तो यही नंबर पे आप संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। मतलब आप होम डिलीवरी भी देते हैं? होम डिलीवरी भी करते हैं। तो बलराज जी, इसके आपने हमें तो काफ़ी जानकारी दी हल्दी के बारे में, तो 1-2 बातें और बता दीजिए कि यदि किसी किसान ने 1 एकड़ के अंदर हल्दी लगानी है तो इसका लगभग कितना उत्पादन हो जाता है 1 एकड़ के अंदर? इसका 1 एकड़ में जी करीबन जो कच्चा माल है वो निकलेगा 90 से 100 क्विंटल तक। ठीक है। और जो इसका पाउडर तैयार होएगा वो 18 से 20 क्विंटल पाउडर तैयार हो जाएगा जी। जैसे हम इसके ऊपर हल्दी के ऊपर मल्चिंग भी करते हैं पराली की। जैसे ये पराली अभी पड़ी है, देखो गल गई पूरी है। हाँ जी, हाँ जी। अब तो बिल्कुल गली हुई है ये। हाँ जी, हाँ जी। हम जब ये बिजाई करते हैं ना, हाँ जी, इसके ऊपर पराली की मल्चिंग भी करते हैं। हमारे को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जी अपने खेत में। ठीक है। पराली को मतलब आग लगाने की जरूरत नहीं है यदि आप हल्दी लगा रहे हो। दूसरा, इसमें पानी की खपत है। जैसे हम चावल में पानी देते हैं, हाँ जी, तो उसमें ये मानो जी पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। उससे ये मानो अगर वो 6 सिंचाई लेती है तो ये 4 सिंचाई लेगी जी। ठीक है। 2 सिंचाई हमारी बचती हैं उस चीज़ में। मतलब हल्दी में सिंचाई भी कम होती है, पानी की खपत कम लगती है। ठीक है। और जो ये आपने इसके ऊपर पराली मतलब फैला रखी है, ये खरपतवार कम होंगे? खरपतवार का काम करेगी, खरपतवार नहीं होने देगी। दूसरा जी, ये अपने खाद का काम करेगी। हाँ बिल्कुल सर। हाँ जी, इसके अंदर ही मिल जाएगी, खाद बन जाएगी। मतलब इसके डबल फायदा है इसका? डबल फायदा जी। तो किसान भाइयों, बलराज जी ने हमारे जो हल्दी की खेती करना चाहते हैं किसान, उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक पे सब्सक्राइब जरूर करें। और बलराज जी का हम चैनल पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद किसान भाई।